Good morning student. Today we will study class 10th physics. First of all, it's important to know what is the syllabus of class 10th physics. The syllabus is three sections. First is light section, second is electrical section, and third is sources of energy. Okay, but the light have two part also, that is reflection and refraction of light and human eye. Second, electrical have two section, electricity, magnetic effect of electric current. But sources of energy is not any section, it's only one chapter. Okay, now we will start first section, that is light. What is light? Light, it is a form of energy which enables us to see the things around us. It is a form of energy which enables us to see the things around us. Okay? Light have some properties also. The light properties of light, basically it have many properties, but here we study only three properties. The first property, which is very important property, that is light traveling in straight line. Okay. Second property, it is a electromagnetic wave. Light have many property particle nature, wave nature, straight line, but here only three. The third is the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is greater than of every speed. Okay. Now the phenomena of light. Light so many natural phenomena, but here in the 10th syllabus there is only two. First is reflection of light, second is refraction of light. Okay, other things there, interference of light and diffraction of light also. The both natural phenomena, that is reflection of light and refraction of light, it depend only one property. Both are explained by only one property. That property is light traveling straight line. Light travel in straight line. It means both property, that is both natural phenomena, that is reflection and refraction, defined by light traveling straight line. Now the next topic is reflection of light. What is the reflection of light? The bouncing back of light by a reflector is called reflection of light. It means when a light fall on a surface, after collision with the surface, light is bounced back. It means return to the initial medium is called reflection of light. It's called reflection. It means ऐसे समझिए कि लाइट आई और किसी वॉल से टकराने पर वो रिटर्न आ जाती है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके. नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट follows some law, that is law of reflection. What is the law of reflection? Law of reflection contains two parts, first law and second law. Here this is a reflector. What is the reflector? रिफ्लेक्टर क्या होता है? हाईली पॉलिश्ड सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टर बोलते हैं. हाईली पॉलिश्ड सरफेस को. हाईली पॉलिश्ड सरफेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा सरफेस जिसको एक साइड इतना पॉलिश कर दे कि वो इतना चमकीला हो जाए कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर. रिफ्लेक्टर क्लियर होता है. रिफ्लेक्टर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिरर. मिरर मतलब रिफ्लेक्टर. ओके, दिस इज रिफ्लेक्टर. दिस इज द नॉर्मल ऑन रिफ्लेक्टर. दिस इज द नॉर्मल ऑन रिफ्लेक्टर. ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे और दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, इंसिडेंट रे आया, यहां से रिफ्लेक्टेड होकर के बाहर निकल गया. ओके, अब देखो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे is called angle of reflection. ठीक है, now we see the first law. What is the first law? First law is that the incident ray, normal and
रिफ्लेक्टेड रे बिलोंग्स इन सेम प्लेन, मतलब कि ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे आया और जैसे देखो नॉर्मल का है बोर्ड में है, इंसिडेंट रे का है बोर्ड में, अब इंसिडेंट रे आया यहां से न जाकर के वो बोर्ड से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड एक प्लेन है। अगर नॉर्मल बोर्ड में है और इंसिडेंट रे भी बोर्ड में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड से ही होकर जाएगा। ठीक है, ये होता है सेम प्लेन में होने का मतलब। ठीक, चलो देखते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे बिलोंग्स सेम प्लेन, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन से बिलोंग करेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जिस एंगल से यहाँ इंसिडेंट होती है लाइट, आई एंगल से, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? आई। इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया वो आई, और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर। तो यहाँ पे ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मतलब हो गया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कंडीशन। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में केवल दो कंडीशन है। पहला क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होनी चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉक कर देना, पॉज कर दीजिए। हम लोग लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, क्लास 10 की फिजिक्स में हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें मिरर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक वर्ड आया था रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर मींस मिरर, मतलब हम लोग क्या स्टार्ट करना है? मिरर। तो देखते हैं मिरर क्या होता है। मिरर, द हाईली पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड मिरर। अगर हम किसी सरफेस को हाईली पॉलिश कर देते हैं, किसी ग्लास प्लेट ले लेते हैं, वन साइड एकदम हाईली पॉलिश कर देते हैं, तो अदर साइड कैसा वर्क करेगा? एज ए रिफ्लेक्टर वर्क करेगा। ठीक है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को उस तरफ नहीं जाने देगा। ठीक, जैसे यही बोर्ड है, ये बहुत ज्यादा पॉलिश्ड हुआ है, जब बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिए तो कैसा बिहेव करने लगा? मिरर की तरह, मतलब ये लाइट को क्या करेगा? बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, चलो तो मिरर क्या हो गया? द हाईली पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ओके, द मिरर आर टू टाइप्स। मिरर कितने टाइप है? टू टाइप्स के। फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर उसके शेप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मिरर तो आप जानते हो, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर किस पर डिपेंड करता है? उसके शेप पर। प्लेन मिरर, द मिरर व्हिच हैव प्लेन सरफेस, मतलब जिसका सरफेस क्या हो? बिल्कुल प्लेन हो, स्ट्रेट लाइन की तरह बिल्कुल प्लेन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ओके, नाउ स्फेरिकल मिरर क्या होगा? द मिरर व्हिच हैव स्फेरिकल सरफेस, मतलब देखो प्लेन मिरर में क्या होगा? ये देखो स्ट्रेट लाइन है, वन साइड हम पॉलिश कर दिए तो हमारा क्या होगा? प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर हम क्या करेंगे? देखो स्फेरिकल शेप है, वन साइड हम पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन मिरर हो गया, ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक, चलो ये तो बात रही मिरर की। अब इसकी डीपली हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं इमेज क्या होता है, पहले जानना इसको जरूरी है। व्हाट इज इमेज? इमेज क्या है? द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को विजुअली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या प्रिंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक, इमेज टू टाइप्स होते हैं। द इमेज आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज रियल इमेज, सेकंड इज वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज, द इमेज व्हिच कैन प्रिंट ऑन स्क्रीन, मतलब ऐसा इमेज जिसको हम किसी स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं, वो होता है रियल इमेज। ठीक है, ये बनता कैसे है? व्हिच इज फाउंड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट्स इज कॉल्ड रियल इमेज, मतलब जो रे लाइट्स आती हैं जी, रे लाइट्स जब भी चलती हैं तो अपने साथ इमेज लेकर चलती हैं। जैसे किसी पेड़ से टकरा कर लाइट आती है जब, तो पेड़ का इमेज लेकर आती है। जब हमारे आंखों में लाइट जाती है तो हमको पेड़ दिखता है। ठीक है, ट्री दिखाई देता है। वैसे ही तो जब रे लाइट्स कहीं से आ रही हैं, ठीक है, ये देखो कहीं से आ रही हैं, तो जब इनका रियली कहीं से प्रिंट होकर आए, देखो इधर से इधर आए, जब रियल में इंटरसेक्शन करेगी, यहाँ पर जो इमेज बनेगा, इमेज काम करते हैं, इसको नीचे समझा देते हैं। यहाँ पर देखो, हाँ ये रहा रियल इमेज ना। देखो अब देखो लाइट्स आई कहीं पर, अब जब रियली में इंटरसेक्ट कर रही है लाइट, रियल इंटरसेक्शन, यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल इमेज। ठीक, रियल इमेज बनेगा। लेकिन अब देखो वर्चुअल इंटरसेक्शन क्या होता है कि जब कहीं जैसे मिरर हो गया, हमने एक प्लेन मिरर रख लिया, प्लेन मिरर। ठीक,
अब यहाँ से लाइट्स आई, ये देखो लाइट्स गई। अब लाइट्स जाने के बाद पीछे तो जा नहीं पा रही है, क्यों नहीं जा पा रही? देखो लाइट्स ये आई और ये आई, अगर तिरछा आई तो ये क्या होंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर अदर डायरेक्शन में जाएंगी, बट हम इसको डॉटेड पीछे बढ़ाएंगे। जब डॉटेड पीछे बढ़ाएंगे तो देखो वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है? वर्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जब रियल में इंटरसेक्शन करेंगे तो वहां पर रियल इमेज बनेगा, और जब वर्चुअली इंटरसेक्शन होगा तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा। देखो वर्चुअल इमेज क्या है? द इमेज which cannot print on screen, ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पर प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड which is formed by virtual intersection of ray lights, जब वास्तव में नहीं आभासी तरीके से लाइट इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। अब आप कहोगे सर कि अगर हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते तो वर्चुअल इमेज हम देखते कैसे? ठीक है, वर्चुअल इमेज एक एग्जांपल लेते हैं प्लेन मिरर का, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है, जब हम अपना चेहरा उसमें देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे मिरर हटाएंगे तो उसके पीछे चेहरा गायब हो जाता है, ठीक है। अब उस इमेज को हम कहीं प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि वो कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमें दिखाई कैसे दिया? देखो जब प्लेन मिरर की अगर बात करते हैं, देखो ये रहा प्लेन मिरर, यहाँ पर देखो ये प्लेन मिरर हो गया। तो प्लेन मिरर में जो हमारे सपोज में यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो उसके चेहरे का जो है पैरेलल लाइट जाती है, ये देखो पैरेलल लाइट गई इसमें। अब जब पैरेलल लाइट जाती है तो पीछे अगर इसको डॉटेड बढ़ाएं तब भी जो है ये इंटरसेक्ट नहीं करती। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इमेज बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करती कहां है? आप देखो जैसे इधर जाती है तो टकरा कर रिटर्न आती है, ठीक है। रिटर्न आने के बाद कहां जाएगी? हमारी आंखों में। जब आंखों में जाती है तो हमारे आंखों में कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस, जो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। वो दोनों रे लाइट्स हमारी आंखों में कन्वर्ज होकर रेटिना पे जाती है, तो इमेज हमारी रेटिना पे बनता है और हम देखते हैं उसको कहां है? मिरर के पीछे देखते हैं, ठीक है। मिरर के पीछे रियल में लाइट इमेज नहीं बनता, कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। हमको दिखाई देता है लेकिन वो रियल में बनता नहीं है। ये होता है वर्चुअल।